العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. ٹھیک ہے بھائی حالہ مت کرے, ٹھیک ہے شان بڑھو. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اس میں بھی سبحان اللہ بولا جاتا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس میں نہیں بولا جائے. دیکھیے یہ بہت ہی عمدہ میں شعر اور کلام پڑھا ہے. اگر میں کہیں اور جا کر کے پڑھتا نا تو کافی نعرے بھی لگتے اور الحمدللہ سارے لوگ اٹھ کر کے سبحان اللہ بھی بولتے. تو آپ اٹھے نہیں, بس زبان کا جو ہے استعمال کیا کریں. نہیں بولتے ہیں لیکن آج بولیں. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ, یا رسول اللہ میں تو آپ کے در کا فقیر ہوں, ایک غلام ہوں, آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. غلام کہہ رہا ہے میں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دین گنا تیرا دے دان صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آپ کے اہل بیت میں سارے جو گھرانے کے لوگ ہیں, بچے ہیں, وہ سارے کے سارے نور ہیں. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر. جب حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی, حالانکہ میں یہ واقعات بتایا چکا ہوں, جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت آپ جب کوئی جھولے میں رکھا گیا تھا تو حضور اپنی انگلیاں مبارکہ جدھر جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر ادھر گھومتے جاتا. اور یہ کھلونا جو تھا یہ چاند تھا حضور کا. تو اسی لیے اس بات کو ایک شاعر نے ذہن میں رکھا اور لکھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. محترم حضرات, سب سے پہلے آئیے ہمارا عقیدت محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ تسمات میں ایک بار محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر کوئی ایک بار درود شریف پڑھتا ہے نا تو اللہ کی 70 رحمتیں برسا کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایک بار درود پڑھنے والے کو اس کے 70 گناہوں کو مٹا کے 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے. تو آپ بتائیں نا, ایک مرتبہ اگر ہم پڑھیں تو ہمارے نامۂ عمل میں اگر چاہے جتنے بھی گناہیں ہوں تو اللہ درود کی برکت سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ الحمدللہ یہ بات حقیقت ہے تو محبت سے حضور پہ درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ. صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت ہی کچھ کیا. جب ان کی ولادت ہوئی تب سے لے کر کے آج تک, اور جب اس دنیا سے ان کی وصال ہوا, آپ پردہ فرما گئے, اس وقت تک آپ کے زبان اطہر پہ یہ صدا آتی, رب ہب لی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. لیکن ہم اسی نبی کی بات سننے والے ہیں اور اسی نبی کا ذکر کرنے والے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے حضور کے تحفے میں کچھ دیں. تحفہ سے یاد آیا کہ اگر ہمارے دوست یا کوئی بھی اگر ہم سے اگر اس کا برتھ ڈے پارٹی ہوتا ہے تو ہم اس کو تحفے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے بہت بڑا تحفہ دیں اور اچھا تحفہ دیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو, شرمندگی ہماری بھی محسوس نہ ہو, اور وہ الحمدللہ ہماری تحفہ کو بہت ہی خوش نصیبی کے ساتھ وہ ہمارے تحفہ کو قبول فرمائے. یہ ایک دوست کا تصور آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو اچھا سے اچھا گفٹ جو ہے اس کو دیں, تحفہ دیں. لیکن قسم خدا کی, آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں ہم کو تحفے میں کچھ نہ دو, ہم کو تحفے میں بس ایک بار درود پاک بھی پڑھ لینا اور کثرت سے, اور ہم کو تحفے میں
कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न तुम्हारी औलादें चाहिए, कुछ नहीं। अगर नबी के तोहफे में अगर आपको देना है तो नबी खुद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारे तरफ से हुजूर का बहुत बड़ा तोहफा होगा, बहुत बड़ा। और इससे यह हदीस पाक में है कि बरोज़ महशर क़यामत के दिन जो इंसान हुजूर पे दुरूद पाक कसरत से पढ़ा होगा और नमाज़ें भी पढ़ी होंगी अपनी ज़िंदगी में, तो हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं अपनी उस उम्मत को कैसे पहचानूंगा। जब वो दुनिया में था तो वज़ू करता था, जब वो दुनिया में था तो नमाज के लिए चेहरे को धोता था, जब वो दुनिया में था तो वज़ू करने के लिए अपने पाँवों को धोता था। तो अगर वो मैदान महशर में कहीं भी खड़ा होगा तो मैं अपनी उम्मत को कैसे पहचानूंगा। वज़ू की बरकत से उसके चेहरे चमकेंगे, वज़ू की बरकत से उसके हाथ चमकेंगे, वज़ू की बरकत से उसके पैर चमकेंगे। तो आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, मैं अपनी उम्मती को कैसे पहचानूंगा। तो सुनो, ऐसे पहचानूंगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, क़यामत का दिन होगा जब कोई किसी का ना होगा। हमारी उम्मत बड़ी बेकरार होगी, बड़ी परेशान हाल होगी, बड़ी मुसीबतों का सामना करेगी, बड़ी प्यासी होगी। तो मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा। वो नमाज दुनिया में पढ़ा करती थी तो दुनिया में वज़ू की वजह से, नमाज की बरकत की वजह से उसके सारे बदन चमकेंगे, तो उस चमकीले की वजह से मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा। तो बताइए ये कितनी खुशनसीबी है। हम अगर वज़ू कर ले तो आका फरमाते हैं कि मैं उसे पहचान जाऊँगा। और फिर सुने आगे, आका फरमाते हैं कि जब मैं पहचान जाऊँगा तो ऐसे ही उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं अपने पास बुलाऊंगा और अल्लाह से कहूँगा, ए अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उसको जन्नत में दाखिल करा दे। जन्नत में आप ये ख्याल रखते हैं ना भाई कि मरना है, बोले ना, मरना है ना, मरना है, कब्र में जाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है, और वहाँ भी मरने के बाद आपका सारा नामो निशान, किस्सा, आपकी ताकत, आपका धन दौलत, आपकी बॉडी, सारे लोग यहीं पे छोड़ देंगे। और आपकी सगी माँ आपसे इतनी मोहब्बत करती है मेरे भाई, आपके सगे भाई आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके सगी बहन आपसे मोहब्बत करती है, आपके सगे वालिद आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत दुनिया में है। माँ की मोहब्बत दुनिया में है, औलाद की मोहब्बत दुनिया में है, बहन की मोहब्बत दुनिया में है, सारे लोगों की मोहब्बत दुनिया में है, लेकिन एक मोहब्बत है और वो मोहब्बत करने वाले किसी और की ज़ात नहीं है, वो मेरे नबी पाक की ज़ात है। आका फरमाते हैं, जब उसकी माँ अपने बेटे के इंतकाल पे जब उसके जिस्म से कपड़े को निकलवाएगी और कफन सादा लपटवाएगी, उसके बाद वही सगी माँ जो कभी ठेस लगता था तो अपने सीने से लगाती थी और अपने आंचल को उसके सर पे रखा करती थी और कहती थी, मेरे लाल तुमको कहीं चोट तो नहीं लग गया। यही सगी माँ, रोने वाली माँ, तड़पने वाली माँ, आपके मरने के बाद आपके जिस्म से कपड़े को उतरवा देगी, आपके जिस्म से वो कपड़े को उतरवा के एक सादा सा टुकड़ा पहनवा करके खुशबू लगाया जाएगा, आपको गुस्ल दिया जाएगा। जब सारी मोहब्बत यहीं रख दी जाएगी, तब आका फरमाते हैं, जब दुनिया की मोहब्बत कब्र तक छूट जाएगी, वहाँ कब्र से शुरू हश्र तक किसी की मोहब्बत नहीं, वो मेरी मोहब्बत काम आएगी। ये मेरी मोहब्बत काम आएगी। और आका फरमाते हैं, कब्र तक ही नहीं बल्कि मैं कब्र से उठाया जाऊंगा और मेरे सहाबा भी उठाए जाएंगे और हमारे सारी उम्मती जब उठाए जाएंगे, उसके बाद मैं अपने रब की बारगाह में सजदा करूंगा और कहूँगा, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब तक मेरा रब मेरे इस गुनहगार उम्मत को माफ़ नहीं करेगा, तब तक ये नबियों का सरदार खुद जन्नत में नहीं जाएगा। तो बताएं, माँ बाप की मोहब्बत से ज़्यादा अजीज नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत। और उसी नबी की महफिल में आप बैठे हैं तो हाथों को उठाएं और एक बार जोर से कह दें, सुभान अल्लाह। यार मज़ा नहीं आया, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, खांसी भी है। आज मैं अपना गला फाड़ दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ला करके, इसलिए कि नबी की महफिल है। और मैं आपको बता दिया हूँ ना कि मैं सारी मोहब्बत अपने माँ से तो मोहब्बत करता हूँ,
सारे लोगों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उनकी मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत के आगे उनकी मोहब्बत कम कुछ नहीं है मेरे लिए। उनकी मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत के लिए सिवा मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं, इसलिए कि यह सारी मोहब्बत दुनिया के अंदर है। मरने के बाद मेरे नबी ही मेरे काम आएंगे। तो अगर आपके भी नबी हैं, मेरे भी नबी हैं, तो एक बार और कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेदार करता हूँ, उसके बाद एक नार लगा के फिर अपनी आगे वाला गुफ्तगू आपको सुनाने की अर्ज करता हूँ। एक बार नार लगा के हुजूर पूरा मजमा आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार गला देखिए और आप लोग देखिए ना, कम से कम और जोर से। मेरे भाई आपसे तो कोई जीत नहीं सकता है ना, बच्चों की आवाज़ें बड़ी ऊंची हुआ करती हैं, आप लोग भी लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर की आमद, नूर की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, तहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा लगा। अब आगे वाली बात एक बार आप सुनो। देखिए मैं अर्ज कर रहा था कि सारी मोहब्बत दुनिया के अंदर, अब मैं शुरू होने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से आप लोग कोई उठेंगे नहीं, कोई जाएंगे नहीं। मेरे भाई आपको अल्लाह की इज्जत की कसम, आप लोग जब तक मैं बैठ न जाऊँ आप लोग नहीं लीजिएगा, मेरी अल्फाजों का मैं भरम रख लीजिएगा। अगर आप मेरे भाई हैं, मेरे भाई है ना, तो आप उठिएगा नहीं। अब बैठ गए हैं, उठने का नाम आपको नहीं लेना है। ये हुजूर की महफिल है। अगर बारिश भी आ जाए, एक बारिश से याद आया कि हम और हमारे उस्ताद और उनके भी उस्ताद थे, तो हम लोग गए थे प्रोग्राम में, जलसा में। बारिश हो रही थी और पंडाले जो है उड़ाने की कोशिश कर रही थी हवा, लेकिन मेरे उस्ताद कहते हैं मेरे भाई परेशान ना हो, ये तो कम से कम कयामत से बढ़ के तो नहीं है, कयामत से हल्का ही न है, एक छोटी सी हवा है, छोटी सी बारिश है। कयामत के दिन तो बड़ी परेशान होंगे, इसमें ये छोटी सी हवा पह रही है, बारिश हल्की हो रही है, तो परेशान होने की क्या बात है। आप लोग बैठे रहें, तो इस बात को ज़हन में रखें और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहें। उठने का नाम आपको नहीं लेना है, मेरी ज़बान को आप भर रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हमारे लिए सब कुछ है, उसके बाद हमारे बात कोई और है। और हुजूर ने हमारी खातिर क्या नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत दिनों से आपको सिर्फ सुनाता आता हूँ और आप सुनते हैं, लेकिन आप मेरी माँ और बहनें भी सुनेंगी। जहाँ भी बैठी हैं हमारी आवाज़ है तो कम से कम उनके कानों पर जाती होगी ना मेरी आवाज़। आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनें गौर से सुने। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके अंदर कोई खामियाँ होंगी तो इस अल्फाज को लेकर के जाइएगा और तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि या रसूलुल्लाह यूज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बारिहम मिन नूरिकुम ख़ुज़ सहिलना अशक़ालना। या रसूलुल्लाह आपके सिवा मेरा है कौन, आपके सिवा मेरी इल्तिजा सुनेगा कौन, आपके सिवा मेरी शफाअत कराएगा कौन, और आपके सिवा मेरा भरम रखेगा कौन। सारी जहाने आप हैं, सारी बहारें आप हैं, रब ने पूरी कायनात आपके लिए बनाया, सारी चांद को आपकी वजह से बनाया, जमीन का फर्श बिछाया नबी के सदके, आसमान का शामियाना लगाया नबी के सदके, आसमान में जो सूरज चमक रहे हैं वो नबी के सदके नबी के सदके, और आसमान में जो तारे रोशनियां बिखरती हैं वो नबी के सदके। हमें आँख मिली है नबी के सदके, हाथ मिले नबी के सदके, पाँव मिले नबी के सदके, जान मिली, जिस्म मिला, औलाद मिली, धन मिला, दौलत मिला, सारी चीज़ें मिली किनके सदके, नबी के सदके। आज नबी पे आपको बोलना होगा और ये आप बोलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो एक बार सुभान अल्लाह में 90 नेकियां लिखी जाती है, और एक बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो 70 गुनाहों को मिटा के रब 70 नेकियां लिखेगा। तो आप सुभान अल्लाह बोलते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें और इतनी तेजी से बोलेंगे, दिल की कलीजे को खोलेंगे और ये कहेंगे या रसूल अल्लाह आज आपकी महफिल सजी है तो मैं आपका जिक्र सुना और आपके रब का जिक्र सुना। या रसूल अल्लाह भले ये उम्मती आपका गुनहगार है, गद्दार है, सियाकार है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मती गद्दार हो नहीं सकता, वफादार है, नमाज नहीं पढ़ती तो क्या हुआ, और भी कोई काम करती तो क्या हुआ, लेकिन आपसे मोहब्बत करते हैं, इतना हम कह लेंगे तो अल्लाह कहेगा
फरिश्तों जाओ, वहाँ जाओ जहाँ मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है, और वहाँ जाके सोने और चांदी की कलम लो, और एक वहाँ पे जो लोग बोलेंगे उनका नाम लिखना और उनके वालिद का नाम लिखना, और जितना सुभान अल्लाह कहते हैं, जितना सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, तो वो जितना कहेंगे उनकी नेकियां कॉपी में लिखते जाना। और आका फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत की बख्शिश कैसे करूंगा, मैदान महशर का वक्त होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब कोई किसी का ना होगा, तो मेरे आका कहेंगे, क्या कहेंगे? आका फरमाते हैं कि वो सारी उम्मत रोते लगते तड़पते उठते गिरते जाएगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास। वो कहेंगे या अल्लाह के नबी हमारी बख्शिश कराइए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं क्या बख्शिश कराऊं, तुम उनके पास जाओ। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो नूह अलैहिस्सलाम वो भी यही कहेंगे मैं क्या तुम्हारी बख्शिश कराऊं। नूह अलैहिस्सलाम के पास जब आएंगे तो हूद अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हूद अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे मैं तुम्हारी क्या बख्शिश कराऊं, तुम उनके पास जाओ। मेरे भाई जो सारे नबी हैं वो भी आपकी बख्शिश नहीं करा सकते, उनके सामने से होते हुए जब आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और आपका ये दिमाग बताएगा कि अब हमारी बख्शिश होने वाली नहीं है, तो सारे नबी ने कहा उनके पास जाओ। इस बात पर सुभान अल्लाह बोलेंगे। वो सारे नबी कहते हैं उनके पास जाओ, तो उधर से आवाज आएगी जब सारे नबी कह के रुक जाएंगे कि तुम उनके पास जाओ, तो मेरा नबी काली कमली ओढ़ के आएंगे और कहेंगे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। ये देखें, जब सारे नबी आपकी मग़फ़िरत नहीं करा सकते और आपकी गुनाह डायरेक्टली माफ़ हो ही नहीं सकती, तो आप बताएं किनकी वजह से माफ़ होगी? हुजूर की वजह से। और जब हुजूर हमारे पास आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक यही जिस्म है जो जिस्म को जब कब्र में कीड़े मकोड़े खा जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला कीड़े मकोड़े खाने वालों को भी और जो जिस्म को कीड़े मकोड़े खाएंगे उन सारे बॉडी को भी सही सलामत कब्र से उठाएगा और उठा के नबी से कहेगा ए मेरे नबी, ये आपकी उम्मत है, बड़ी परेशान हाल है, अपनी उम्मतियों के गुनाहों को आपकी उम्मती को गुनाहों को मैंने माफ़ कर दिया है, और इनको एक काम कीजिए, आप हौज़े कौसर का जाम पिला दीजिए और इनको हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करा दीजिए। जन्नत का नाम सुनोगे तो कम से कम सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए। ये नबी है। और सुने आगे क्या हुआ, नबी ने हमारे लिए क्या नहीं किया। और हमारी माँ बहनें सुने, आका फरमाते हैं कि मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया ना, तो जहन्नम में जब जहन्नम के पास गया, मेरी बहन गौर से सुने, ये उनके लिए कह रहा हूँ, मेरी माँ से। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, मैं जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मेरे चीखें निकली और मैं आया ना तो बड़ी परेशान था। क्या देख के? सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह आपने क्या देखा? तो आका कहते हैं सहाबा, जब मैं जहन्नम की मुशाहिदा लिया ना, तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की औरतों को बालों के साथ साथ उनके बालों को जो है जहन्नम की कड़ियों से बांधा हुआ था, जहन्नम की कड़ियों से बांधा हुआ था। फिर आका फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरी मुसलमान उम्मतियों में से जो औरतें हैं उनका हाल देखा कि उनके पैरों को उल्टा करके जहन्नम के अंदर लटकाया गया था। फिर आका फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरी उम्मत की जो औरतें थीं, जो खातून थीं, उनको मैंने देखा कि उनके होंठों को काटा गया था। मैंने क्या देखा कि उनके आँखों को निकाला गया था। मैंने क्या देखा, उनके ज़बानों को काटा गया था। मैंने क्या देखा, उनके जो चेहरे खूबसूरत थे दुनिया के अंदर, उन चेहरों पे जो पाउडर लगाया करती थी, संवारा करती थी, आका फरमाते हैं जिब्राइल उसी चेहरे को अल्लाह ने जहन्नम में जला दिया। फिर मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया और वापस आया तो फिर जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल वो क्या करती थी कि इनकी वजह से इनके लिए इतना दर्दनाक अज़ाब है, और किसी को अल्लाह ने जहन्नम की खिड़कियों से बालों को बांधा हुआ है,
किसी की औरत को, किसी औरत को अल्लाह ने पैरों को उल्टा करके बांधा हुआ है, और किसी को बाल, किसी के आंखों को निकाला हुआ है, किसी के होठों को रब ने काटा हुआ है, किसी के गाले जो चमड़े हैं इनको उखाड़ा गया है, किसी को ये जो नाखून है वो उखाड़े गए हैं। तो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मतों में से वो औरतें हैं जो जब घर से बाहर निकला करती थी तो बगैर दुपट्टे के निकला करती थी, तो उनकी बालों पर निगाह किसी मर्द, गैर मर्द की नज़र पड़ी, इसीलिए किसी गैर मर्द ने उसके बालों को देखा तो अल्लाह ने उसके बालों को समेत जो है जहन्नम की खिड़कियों से लटका रखा है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहते हैं जिब्राइल अब ज़रा बता उनके चेहरे क्यों काटे गए थे? तो अल्लाह के वो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने रब से सुना है कि आपकी उम्मती में से वो ख़वातीन हैं, वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर सजती संवरती तो थी, लेकिन उनके जहन में, उनके दिमाग में ये बात आती थी कि मैं सजूंगी संवरूंगी तो अच्छा लगूंगी, और वो उनकी नीयत ये थी कि लोग मुझे देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, वो अपनी शौहर के लिए नहीं सजती थी। इसीलिए अल्लाह ने इनके गालों को जो है जहन्नम में जला रखा है। और अल्लाह के नबी से फिर जिब्राइल कहते हैं, ए जिब्राइल अब बता कि उनके होठों को क्यों काटा गया था? तो अल्लाह के नबी से जिब्राइल कहते हैं, ए या रसूल अल्लाह, आपके गुनहगार उम्मतियों के ख़वातीन को अल्लाह ने होठों को काटा था, वो इसलिए काटा है कि वो दुनिया के अंदर जो है इस पे क्या लगाया जाता है वो लगा के निकला करती थी, और उनकी नीयत ये हुआ करती थी कि कोई गैर मर्द देखेगा या कोई और लोग देखेंगे तो मेरी तारीफ करेंगे। या रसूल अल्लाह, कुल मिला के बात ये है कि आपके उम्मती में से वो ख़वातीन हैं जो शौहर के लिए नहीं सजती थी, शौहर के बगैर घर से निकला करती थी, शौहर की नाफरमानियाँ किया करती थी, शौहर की बात नहीं माना करती थी और शौहर को जवाब लड़ाया करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा अजाब दिया है। तो अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आया, वही नबी जो सारी दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, किसी को क़यामत के दिन परवाह नहीं होगा सिवाय हमारे नबी के। वही नबी इतने सुनने के बाद आप अपने आंखें मुबारक में आंसू भरेंगे और कहेंगे, या अल्लाह रब्बि हवली उम्मती, मेरी उम्मत गुनहगार को बख्श दे। तो अल्लाह कहेगा, या रसूल अल्लाह, अगर दुनिया के अंदर कोई भी ख़वातीन अगर मुझ पर या आप पर एक मरतबा दुरूद पढ़ी होंगी और नमाज भी पढ़ी होंगी और शौहर के बगैर इजाज़त के घर से नहीं निकली होंगी, शौहर की नाफरमानियाँ की नहीं होंगी, बल्कि वफादारियत के साथ पेश आई होंगी, तो या रसूल अल्लाह, मेरा वादा है कि मैं आप पे दुरूद पढ़ने वालों को सारे गुनाहों को नहीं देखूंगा, बल्कि ये देखूंगा कि कौन कितना गुनहगार है। मुझको फर्क नहीं पड़ेगा, गुनहगार होंगे, सियाकार होंगे, खताकार होंगे, सारे गुनाहों को एक पल्ले में रखूंगा और कहूंगा, या रसूल अल्लाह, आपके इन ख़वातीन ने जो जो भी आप पे दुरूद पढ़ी है और दुनिया के अंदर नमाज़ें पढ़ी है, तो या रसूल अल्लाह वो दुरूद लाइए, नमाज लाइए। जब हुजूर लाएंगे तो अल्लाह कहेगा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने दुरूद की बरकत से, नमाजों की बरकत से मैंने सारे औरतों के गुनाहों को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए, इतनी गुनहगार औरतों को रब सिर्फ दुरूद पाक पढ़ ले अगर कोई और नमाजों की पाबंदियाँ करे, और फिर वो जो है अपनी शौहरों की नाफरमानियाँ नहीं बल्कि उनकी इज्जत किया नहीं। लेकिन आज मैं बुलवाऊंगा, एक बार दोनों हाथ उठाएं, एक बार दोनों हाथ उठाएं, कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इससे आगे देखें, सुने, मेरे आका फरमाते हैं, अब मैं अपनी गुफ्तगू की जो है अनकरीब आ रहा हूँ, मैं अपनी बातों को ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं लिहाजा ये चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को बगौर सुने, और मेरी माँ बहनें आपसे ये इल्तिजा है, हाथ जोड़ के आप जहाँ भी बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह शांत बैठें, और जो बातें हो रही हैं नबी की, रब की, आप बगौर उसको सुने, और सुन करके आप आज के बाद से अपनी ज़िंदगी को बदलें। कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए ये मेरे नबी बताते हैं, मेरे नबी बताते हैं। क्या बताते हैं?
یہ کہتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا یار، میں چاہتا ہوں کہ ہلہ آپ مت کریں، توجہ نہ کریں. دیکھیے میں بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگ بالکل ادھر ادھر نہ کریں، ہلہ شور نہ کریں. یہ نبی کی محفل ہے، ادب و احترام بہت ضروری ہے. فرشتے بھی آتے ہیں یہاں پہ، آئے ہوں گے اور وہ دیکھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں. الحمدللہ سارے فرشتے جو ہیں وہ کاپی اور قلم سے لکھیں گے اور رب کی بارگاہ میں لے جا کر کے کہیں گے یا اللہ یہ تیرے نبی کی امت اور یہ تیرے نبی کی امتیہ سبحان اللہ کہہ رہی تھی، الحمدللہ کہہ رہی تھی، درود پاک پڑھ رہی تھی، تو میں سارے ان وظیفوں کو لکھ کر کے لے کر کے آیا ہوں، تو رب کی بارگاہ میں وہ پیش کریں گے. تو اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری قیامت کے دن بخشش فرما دے گا. تو آپ ادب و احترام کے ساتھ سنیں. اب سنیں، آقا فرماتے ہیں خواتین کے لیے، میرے ماں بہنیں، شوہر کی کتنی بڑی عزت ہے اور اس کا ادب کیسے کیا جائے. شوہر کی کتنی بڑی عزت ہے اور اس کی ادب کیسے کی جائے، اس کی خاطرداری کیسے کی جائے. آقا فرماتے ہیں ایک شعر میں، بہت بڑا قیمتی شعر، اور آپ کو سبحان اللہ اگر سمجھ میں آئے تو بول دیجیے گا. آقا فرماتے ہیں صرف ایک جملہ سنیں. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کے جسم میں، کسی عورت کے شوہر کے جسم میں یعنی بدن میں پورے پھوڑے بنے ہوں، یعنی گھاؤ ہو گئے ہوں، اور وہ گھاؤ بالکل پک گئے ہوں، اور وہ گھاؤ سے پیپ بہتا ہوا ہو، اور وہ شوہر جس کی عورت ہے وہ عورت اگر اپنے شوہر کے گھاؤ کو زبان سے چاٹے گی نا، پھر بھی شوہر کی حقدار کو حق ادا نہیں کر سکتی. یا تو فرماتے ہیں اگر گھاؤ کو وہ اگر زبان سے کوشش کرے وہ عورت کہ میں اپنے شوہر کے جسم کے گھاؤ کو صاف کر دوں زبان سے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. کتنی بڑی. اور آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں اگر ان کی شوہر آتے ہیں تو وہ بیٹھی رہتی ہیں، اگر ان کے شوہر آتے ہیں تو دوپٹے کہیں اور وہ کہیں اور، اگر والد آتے ہیں تو ان کی استقبال کیسے کریں. میرے نبی، نبیوں کے سردار اور ان کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں جب گھر میں رہتی اور کسی بیڈ پہ بیٹھی رہتی اور اسی وقت آقا گھر میں تشریف لاتے تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور کو دیکھتی نا تو حضور کو دیکھتے ہی دیکھتے میں کھڑی ہو جاتی اور کھڑی ہو کے ان کا استقبال کرتی، سلام کرتی. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری ماؤں، آپ غور کریں کہ ہماری ماں اور بہنیں ہمارے گھر میں جانے کے بعد ہم سے سلام کرتی ہے؟ نہیں کرتی. ایک گلاس پانی مانگیے تو کافی دیر کے بعد دیتی ہے، اور ایک بات کہیے تو اس کا جواب بھی دیا کرتی ہے، اور ان کی آوازیں غیر مردوں کے کانوں میں جاتی ہیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر کی عورتوں کی آوازیں مرد کی عورتوں کی آوازوں سے زیادہ ہو، یعنی ان کی آوازیں کم ہو اور عورتوں کی آوازیں زیادہ ہو، باہر آتی ہو اور وہ آوازیں غیر مومنوں کے، غیر مسلمانوں کے، غیر آدمیوں کے کانوں میں جائیں گے تو اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ، اور پردے کا نام ہے پورے جسم کو پردہ کریں. اتنی ہتھیلی کو بھی میرا اسلام شریعت میں اجازت ہے کہ میری خواتین اور بہنوں کو یہ سوچنی چاہیے کہ باہر نکلنے سے پہلے یہ اپنے ہتھیلی کو بھی ڈھک کے نکلے اور صرف آنکھ کھلے رہیں. لیکن یہاں یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تک نظر آتے ہیں، ہماری یہاں یہ سر نظر آتے ہیں، پاؤں نظر آتے ہیں، دوپٹے کہیں اور ہوتے ہیں، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، اور ٹھٹاک کے مار کے ہنسا کرتے ہیں. میرے بھائی، آقا فرماتے ہیں جتنے آپ نے زندگی میں نمازیں پڑھی ہوں گی، درودیں پڑھی ہوں گی، اور آپ نے درودیں پڑھنے کی بعد بھی گناہوں کی کثرت زیادہ ہوں گی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خواتین کو، میری امتیوں کے گناہوں کو اللہ معاف